So in the last class, Dr. Chetan has already covered the types of cataract surgery. He's already told you the steps of cataract surgery, and I think he's also shown you two videos. So that part I will not be revising. So we will just learn about the management of cataract. Now, remember, surgery is the treatment of cataract. When we talk about management, what we mean is all the history taking, the investigations, and the treatment that we will do when a patient of any disease comes to us. So remember, in your question paper, look carefully whether you have been asked the treatment or the management. Management means everything. It encompasses everything. So last time I think we had discussed uh, the indications for. So I told you that there is no real medical management of cataract, because it's a degenerative condition. Once something has degenerated, you cannot really regenerate it. Liver, I think, can regenerate on its own, but I don't think so. Anything like retinal degeneration, it's gone forever. Same with cataract. Though there are certain drops that are available in the market, like Calodin and Caraxol. What do they have? They have salts of potassium iodide. Okay, and they are supposed to slow the progress of this degeneration, or supposed to slow the. I don't know how effective they are, but sometimes patients come with very early cataract, and then the only real usefulness of them, as far as I know, is that sometimes patients come and then they are like, नहीं नहीं अभी ऑपरेशन नहीं कराना है, पर आप कोई दवा लिख दीजिए. So instead of writing nothing, at least we can write them. Even if they are 0.0001% effective, there will be some effect, though I doubt their efficacy. So I have told you that we generally treatment of cataract is surgery, and I told you कि आप लोग से कभी अगर कोई पूछे कि कैटरैक्ट सर्जरी का क्या इंडिकेशन है, आपका जवाब होना चाहिए when the patient cannot do his routine daily work, then he has to be operated. So the question of when is routine daily work, this answer covers everything. Now, routine daily work, I gave you the example of the villager who just has to see big cows and buffaloes, and I gave you the example of the neurosurgeon, or the watchmaker, or the jeweler, or somebody who's writing ledgers, okay, who have very fine work. So they would obviously want good vision earlier. They cannot stand blurred vision for a long time. While a villager, probably, who doesn't need too much of near work or close work, he can stand blurred vision for a longer time. Come in. So इसके अलावा अगर आपसे पूछे any other indication, so yeah, you can do cataract surgery when cataract की वजह से फेकोलाइटिक या फेकोमॉर्फिक ग्लाकोमा हो रहा है, सामने कैटरैक्ट है और पीछे रेटिनल कोई डिजीज है जिसमें लेजर की जरूरत है. लेजर नीड्स अ क्लियर मीडिया. So laser needs a clear media, and if you don't have a clear media, you will not. So उस रेटिनल, सपोजिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में हम लेजर शॉट्स लगा के ब्लीडिंग वेसल्स को कोएगुलेट करते हैं. आप लेजर शॉट्स लगा नहीं सकते अगर सामने मोटा सा कैटरैक्ट है, ठीक है. सो यू नीड टू ऑपरेट एट एन अर्लियर टाइम. So pre-operative evaluation. Pre-operative evaluation of cataract is very important. अगर मैं आप लोग को शॉर्ट में बताऊं कि हम क्या क्या करते हैं, तो आप लोग लिख लीजिए पॉइंट वाइज. पॉइंट नंबर 1, हिस्ट्री टेकिंग. पॉइंट नंबर 2, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, इसको ब्रैकेट में लिखिए, यूरिन इन्वेस्टिगेशंस ब्रैकेट में लिखिए इसको. पॉइंट नंबर 4, ज़ाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्टिंग. इसको शॉर्ट में XST लिखते हैं, ज़ाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्टिंग. पॉइंट नंबर 5, ब्लड प्रेशर. पॉइंट नंबर 6,
IOP, intraocular pressure. Point number 6, IOP, intraocular pressure. Point number 7, IOLP, IOL power calculation, IOL power calculation. Point number 8, ये सब इन्वेस्टिगेशन ही है एक्चुअली, है ना. हिस्ट्री टेकिंग अलग है. हिस्ट्री टेकिंग में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी. पॉइंट नंबर 8 क्या बता रहे थे? B scan. B scan is an ultrasound, okay, of the eye. So हम क्यों ये सब करना चाह रहे हैं? अगर आपने पेशेंट का ठीक से प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन नहीं किया है, so there can happen two things. Firstly, you will face problems in the surgery which you had not anticipated. If you have done a proper pre-operative evaluation, and that holds for any surgery, then any problems that you may encounter during surgery, you will be ready to face those problems. You know कि ये डायबिटिक पेशेंट है. हाईली डायबिटिक पेशेंट में 3 चीजें हो सकती हैं. आप तीनों का ख्याल रखेंगे. पहला है कि आप सर्जरी के पहले उससे सर्जरी अंडर LA अंडर GVP करेंगे. GVP इज गार्डेड, अभी मैं ऐसी बता रही हूँ, बाद में तुम लोग लिख लेना. GVP इज गार्डेड विजुअल प्रोग्नोसिस. बिकॉज सपोजिंग मैच्योर कैटरैक्ट है दोनों आंख में, आपको पीछे रेटिना तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो हम गार्डेड विजुअल प्रोग्नोसिस में करते हैं. पेशेंट को ये बता देते हैं कि आपको 20 साल से डायबिटीज है. देयर इज एवरी चांस कि आपके रेटिना में डायबिटिक रेटिनोपैथी होगा. तो जितनी नजर मोतियाबिंद से जा रही है वो तो आ जाएगी, अगर कोई नजर रेटिनल डिजीज से जा रही है तो वो नहीं आएगी. सो आप पेशेंट को बताएंगे. नाउ पेशेंट सेज कि नहीं, कोई जरूरी है कि नजर नहीं आएगी. नाउ यू कैन नॉट से, इट्स नॉट 100% थिंग कि उसको है इतने दिन से डायबिटीज तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी होगा ही होगा, है ना. ज्यादा चांसेस है कि होगा, बट आई हैव सीन केसेस जहां बहुत साल से है डायबिटीज और डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है. सो यू कैन से बिकॉज आई कैनॉट सी द रेटिना, आई कैनॉट से. So I have to take this consent from you. I tell the patient, I tell them clearly, I said, ताकि आप बाद में मुझसे लड़ाई नहीं करें. They are like, अरे हम क्यों लड़ेंगे types, you know, they are like that. But you have to make them understand why. They will be with you if you take the time to talk to them. That I have seen. Even if you end up with a complication during surgery, if you have given that extra time to talk to the patient and really explain, they will be with you. There was a study done in the US on which doctors were sued more for post-operative complications, and I'm not talking about ophthalmologists, or which doctors had more so your history taking is so that you are prepared for any eventualities. Let me come back to ophthalm. क्या क्या इवेंचुअलिटी कैटरैक्ट सर्जरी में हो सकती है? 2 जो बहुत कॉमन है मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको लॉन्ग केस कैटरैक्ट का ही मिलेगा, और आप हिस्ट्री टेकिंग में हमेशा आप लोग बोलते हैं देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन. जब आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि आपने इन दोनों चीज की हिस्ट्री क्यों ली, आप लोग बगले झांकने लगते हैं, आपको जवाब नहीं पता होता है. मैं अभी बता रही हूँ, जिसको लिखना है लिख लीजिए, जो दिमाग में रख सकते हैं रखिए, बट यू हैव टू गिव दिस आंसर. For diabetes, there are 3 things. Firstly, the patient may have diabetic retinopathy, which will affect the prognosis, which will affect the outcome of the surgery. ठीक है? अगर पेशेंट का कैटरैक्ट कम है जिसमें कि हम रेटिना देख सकते हैं, तो हम रेटिना देख लेंगे, तब हमको पता चल जाएगा डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं. अगर पेशेंट का मैच्योर कैटरैक्ट है कि या ऑलमोस्ट मैच्योर है कि हम रेटिना देख ही नहीं पा रहे हैं, तो हम कम से कम गार्डेड विजुअल प्रोग्नोसिस में सर्जरी करेंगे. तो पहली चीज है डायबिटिक रेटिनोपैथी विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ द सर्जरी. दैट इज व्हाई वी टेक हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज. सेकेंड रीजन व्हाई वी टेक हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इज डायबिटिक्स में प्यूपिल फुली डायलेट नहीं होता है. ठीक है, द प्यूपिल डज नॉट डायलेट फुली इन डायबिटिक्स. हमको सर्जरी के पहले प्यूपिल को पूरा डायलेट करना होता है, स्पेशली इन अ सर्जरी लाइक SICS और इन फैक्ट एनी सर्जरी, इवन इन फेको इमल्सिफिकेशन वेयर वी आर इमल्सिफाइंग द न्यूक्लियस. अगर प्यूपिल पूरा डायलेट नहीं है
तो हम रेक्सिस नहीं बना पाते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते ठीक से, साइड से हम कॉर्टिकल मैटर जा जाके वॉश नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू एंश्योर अ गुड डायलिटेशन। इफ ही इज अ हाईली डायबिटिक सिंस लॉन्ग ईयर्स, यू नो कि इसका प्यूपल ठीक से डायलेट नहीं होगा, यू विल प्रोबेबली बी प्रिपेयर्ड कि हमको अदर मेथड्स ऑफ डायलिटेशन रादर देन जस्ट फार्माकोलॉजिकल डायलिटेशन। हम जनरली सर्जरी के पहले ट्रोपिकामाइड प्लस फिनाइलेफ्रिन डालते हैं प्यूपल डायलेट करने के लिए। आप छोटे से दरवाजे के पीछे से बड़ा सा कैटरैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यू नीड गुड डायलिटेशन कि आप वो कैटरैक्ट निकाल पाए, नहीं तो जो आइरिस है वो उसको एकदम कैप्चर कर लेता है। लेंस आप निकालेंगे कैसे, इतना आइरिस ना एकदम टाइट होके प्यूपल मतलब एकदम कैप्चर टाइप से कर लेता है, आप नहीं निकाल सकते। सो यू विल बी प्रिपेयर्ड। सो सेकेंड इज प्यूपल may not dilate fully during surgery, and third is you will take special precaution in the post operative period because डायबिटिक्स में वूंड हीलिंग पुअर होती है, डायबिटिक्स में पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा रहती हैं। क्यों? बिकॉज देयर ब्लड हैज हाई ब्लड शुगर, शुगर यू नो that just becomes a good medium for bacterial growth anyway, है ना। So just remember कि डायबिटिक्स में poor wound healing होती है, chances of post operative infection ज्यादा होते हैं, so we will just take extra care, ठीक है। So even during pre-operative, अगर like I told my PGs, there was a case, she was highly diabetic, so I was like कि तुम, हम लोग lid को ना पेंट करते हैं with बीटाडीन, बेसिकली वाइप करते हैं, और ये जो कंजंक्टिवल कल्डिसैक है उसमें भी बीटाडीन डालते हैं। दे हैव बीन स्टडीज कि अगर आपने 3 मिनट तक 50% डाइल्यूटेड बीटाडीन डाला है तो जो कंजंक्टिवल कल्डिसैक में जो बैक्टीरियल ग्रोथ मतलब जो रहते हैं नेचुरल बैक्टीरिया, उन्हीं से इन्फेक्शन एक्चुअली होता है, तो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो हम बीटाडीन डालेंगे तो आई विल सॉर्ट ऑफ आई जस्ट टेक दैट एक्स्ट्रा मिनट टू टेल द पीजीज कि देखो कि 3 मिनट तक रहे, 2 बार वाइप कर दो लिड्स को, यू नो, ऑल दीज जस्ट दीज स्मॉल प्रिकॉशंस कैन go a long way in ensuring a good outcome. So this is for diabetes. What for hypertension? Remember, कोई भी general surgery में भी हम लोग hypertensive में कभी ऑपरेट नहीं करते। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया जिसका ब्लड शुगर 370 है, जिसका बीपी 200/120 है, हम लोग नहीं ऑपरेट करेंगे, आई छोड़ दो, कोई भी सर्जरी नहीं करेंगे, ठीक है। सो पहले मेडिसिन रेफरेंस कराई जाती है, उस पेशेंट का ब्लड शुगर बीपी कंट्रोल करवाया जाता है, चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन, 4 दिन, जो भी है, उसके बाद सर्जरी की जाती है। बहुत अगर हम आइडियल सिनारियो में चले जाएं तो एक्चुअली द ब्लड शुगर शुड एटलीस्ट बी कंट्रोल्ड फॉर 15-20 days बिफोर वी ऑपरेट, बट जनरली बिकॉज पेशेंट्स लाइक दे कि नहीं कर दीजिए, हमको दिख नहीं रहा, एंड दे आर like bilateral mature cataract, तो हम लोग कर देते हैं, but at least the blood sugar should be normal and it should continue to be normal for 15 days after surgery. So for BP हम क्या देखना चाहते हैं? अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो there are chances of choroidal hemorrhage, ठीक है। choroidal hemorrhage या expulsive hemorrhage उसको कहते हैं, मतलब आंख के अंदर से जो choroidal blood vessels है वो bleed कर जाते हैं। होता क्या है ना, हमारी आई एक बहुत टाइट चेम्बर है, बैठ जाइए आप लोग, और इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर नॉर्मल इज 12 to 20 millimeters of Hg. It is higher than your मतलब your maybe. So once we give an incision and we open the anterior chamber, तो प्रेशर डिफरेंशियल होता है, क्योंकि जैसे ही आपने इंसिजन दिया लिम्बस पे तो तुरंत एक्वस लीक करता है, इमीडिएटली आई का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जब न्यूक्लियस डिलीवरी की, इसलिए हम लोग को बताया जाता है कि न्यूक्लियस डिलीवरी, आप न्यूक्लियस निकालने जो लास्ट पार्ट है उसको बहुत जेंटली भक्त से नहीं निकालने, बिकॉज दैट प्रेशर डिफरेंशियल, उससे भी सडनली आई जो एकदम से सॉफ्ट होती है, तो देयर इज एवरी चांस, खास करके जिन पेशेंट्स में बीपी हाई है, कि पीछे से कोरोइडल ब्लड वेसल्स, दिस सपोजिंग यू कैन इमेजिन इट समथिंग लाइक दैट, कि आई का प्रेशर है जिससे वो एक तरह से दबे हुए हैं, सडनली आई का प्रेशर कम हुआ तो दोस कोरोइडल ब्लड वेसल्स they can rupture and bleed, ठीक है। So hypertension की हिस्ट्री इसलिए लेते हैं। Any dental oral problems, there should be no nidus of infection in and around the eye before cataract surgery. कोई भी lid margin पे स्टाई नहीं होना चाहिए, chronic डेक्रायोसिस्टाइटिस नहीं होना चाहिए उसको, दांत में कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, नोज में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ईयर में कोई इन्फेक्शन नहीं, मतलब ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं पेशेंट शुड बी हेल्दी, ठीक है।
आसपास तो डेफिनेटली, और आई के आसपास टाई है और या कुछ को इन्फ्लेम्ड कलेजियन है या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, मतलब हम लोग स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन जो करते हैं तो सबसे पहली चीज देखते हैं पेशेंट को कहीं आंख में रेडनेस डिस्चार्ज तो नहीं है। कई पेशेंट जो होते हैं उनके इतना इतना डिस्चार्ज रहता है, सर्जरी इज पोस्टपोन्ड। हम उनको अपने पास रख के उनका बीटाडीन से लिड क्लीन करवाते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डलवाते हैं। ऐसे भी सर्जरी के पहले नॉर्मल पेशेंट्स में भी एक दिन पहले से एंटीबायोटिक ड्रॉप स्टार्ट होती है, ठीक है, दोनों आंख में। सिर्फ जिस आंख में सर्जरी हो रही है उसमें नहीं पड़ती है, दोनों आंख में पड़ती है, ठीक है। बट जिनमें बहुत डिस्चार्ज है उसमें सर्जरी इज पोस्टपोन्ड। और बाकी हमको नोज, डेंटल, क्रॉनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस, टाई, एनी ऑरल प्रॉब्लम्स, ये सारी हम लोग को देखनी होती है। एनी ड्रग एलर्जी, ठीक है, पेशेंट जिनमें कोई भी ड्रग एलर्जी है ये लिखना चाहिए। ये आप लोग शुरू से जब प्रिस्क्रिप्शन लिखे, whenever you start practicing, make it a habit of writing drug allergy, because you may miss it, patient may forget to tell you, and if something happens you will be liable to be sued, ठीक है। So drug allergy, it is very important to take the history of. Ocular examination, फिर अगर हम ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले हम विजुअल एक्विटी देखते हैं, ठीक है। विजुअल एक्विटी में अगर इमेच्योर कैटरैक्ट है तो पेशेंट एटलीस्ट फिंगर काउंट करेगा जो भी है। विजुअल एक्विटी एंड उसका पिनहोल विजन हम देखते हैं। पेशेंट का विजुअल एक्विटी आपने अगर 1000, 2000, 5000 केसेस देख लिए तो आप रफली जज कर सकते हैं कि जितना कैटरैक्ट आपको स्लिट लैम्प में मिल रहा है तो कितना विजन मिलेगा। अब कैटरैक्ट तो आपको मिल रहा है इमेच्योर और पेशेंट विजुअल एक्विटी PLPR बता रहा है, सो यू नो इवन इफ यू कांट सी द रेटिना यू नो, क्योंकि आई टोल्ड यू इमेच्योर कैटरैक्ट में मिनिमम विजन होगा फिंगर काउंट क्लोज टू फेस, उससे कम अगर है हैंड मूवमेंट या PLPR मतलब मैच्योर कैटरैक्ट है। तो आपको दिख रहा है मैच्योर कैटरैक्ट है लेकिन पेशेंट PLPR बता रहा है, विजन फिंगर काउंट कर ही नहीं पा रहा। सो नाउ यू नो कि इसको कोई और बीमारी है। आपको हो सकता है पीछे ऑप्टिक नर्व नहीं दिख रही हो, आपको रेटिना नहीं दिख रहा हो, यू कांट नो, बट यू नो देयर इज सम अदर disease that is affecting, so you will operate under guarded visual prognosis. You will tell the patient आपको जितना मोतियाबिंद है और जितनी नजर आपकी कम है वो मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपका मोतियाबिंद तो कम है, उतना है नहीं, और आपकी नजर बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, मतलब आपको आंख में कोई और बीमारी है, अभी तो हमें दिख नहीं रहा, हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये बता दे रहे हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद पूरी नजर 6/6 आने की संभावना कम है। इफ यू टेल दैट, तो इसमें कई बार क्या होता है कि जब हम लोग के हॉस्पिटल्स में कैंप लगते हैं, फ्री कैंप्स, तो समहाउ द पेशेंट्स दे आर ब्रॉट एंड दे आर ऑफ की बस हमारा हो जाए ऑपरेशन, फ्री में कैंप लगा है, हमारा बस किसी तरह हो जाए ऑपरेशन। सो जब उनकी हम विजुअल एक्विटी लेने लगते हैं तो दे फील दैट इट इज सम काइंड ऑफ टेस्ट, यू नो, कि ये है, अगर हम नजर बता देंगे तो ये हमें वापस हमारे गांव भेज देंगे, तो वो जान के नहीं दिख रहा, एंड you know you're showing the finger and they're looking at it and maybe hand movement, but supposing and nahi dikh nahi raha, and they look here and there, and you know you can just get the gut feeling that they are not being accurate, okay, and so many times just to cross check, because you know once you start giving them the GVP wala spiel ki hum bhai aapko nazar nahi aayegi puri or whatever, और यू जस्ट गो एंड टेल देम कि अम्मा जी देखिए ठीक से नजर बताइए, आप मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो आप बता दीजिए, नहीं तो ऑपरेशन में भी गड़बड़, बिकॉज एनीथिंग लाइक दैट यू जस्ट टेल देम, तो दे सडनली स्टार्ट सीइंग, हाँ 2 है ना। इट हैज हैपेंड ऑन मल्टीपल ओकेजन, सी दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर इलिटरेट, they keep telling their age at 35 till they lose their teeth, and then suddenly they are 65, they never have any intermediate ages, 35 of up 65, really I've seen that, so anyway, so it is nothing to laugh about, but it happens, there's some kind of mindset works. So visual, now PL kya hai? PL is perception of light. Remember, absolutely no matter kitna dense cataract ho aur kitne saal se ho, perception of light will always be present, always be present. Recently, I was sitting in my HOD's chamber. I was talking to him, and a patient was brought in, and he came in like this. I'll just demonstrate.
he was brought in by somebody else. He was brought in like this, and then he was made to sit down, and he sat down. जिस तरह से पेशेंट चल के आया, आई सेड सर इसको सिर्फ कैटरैक्ट तो है नहीं, तो मतलब कुछ ऑप्टिक नर्व की बीमारी लग रही है या कुछ और. अ कैटरैक्ट पेशेंट विल नेवर, जैसे फिल्मों में ऐसे वो ब्लाइंड वाला दिखाते हैं ना, कैटरैक्ट पेशेंट नेवर वॉक्स लाइक दैट. अ पेशेंट ऑफ ऑप्टिक अट्रोफी कह लो या एनी सिवियर रेटिनल डिजीज विल वॉक लाइक दैट. ठीक है, वो जो ब्लाइंडनेस वाला एक जो अजीब, वो आप लोग शायद अगर बार बार देखें पेशेंट तो आइडिया ज्यादा लगेगा. कैटरैक्ट के पेशेंट को नहीं दिखाई देगा, बायलैटरल है, सब है, बट दे विल नॉट वॉक. एंड अल्टीमेटली हुआ वही, उसका ब्लड शुगर कराया गया 464 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, मतलब ही हैड गिवन नो हिस्ट्री. So that was it. So PL will always be present, and PR is projection of rays will always be accurate. Remember that. ठीक है. So PR क्या होता है? Perception of light. बेसिकली हमको सामने से लाइट चमकानी चाहिए और हम सेंट्रल रेटिना को टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. अगर हम साइड से चमकाएं तो ऑब्वियसली साइड वाली रेटिना भी लाइट परसीव कर लेगी, बट हम सामने से अगर चमका रहे हो, पेशेंट लाइट को देख रहा है, तो हम सेंट्रल रेटिना टेस्ट कर रहे हैं. प्रोजेक्शन ऑफ रेज इज अ टेस्ट फॉर पेरिफेरल रेटिना. रिमेंबर दैट टुडे. You will be asked PLPR. You will be asked in the Viva. So projection of rays is a test for peripheral retina. क्या टेस्ट करते हैं पेरिफेरल रेटिना में? अगर हमने यहां से लाइट चमकाई, ठीक है, तो हम कौन सा रेटिना टेस्ट कर रहे हैं? कौन सा रेटिना? सुपीरियर, इंफीरियर, नेजल, टेम्पोरल? नेजल. नेजल. टेम्पोरल. My SR? Nasal. He's an SR, so he's senior to all of you. He's already done opthal MS. He's now SR. So if he's saying nasal, it has to be nasal. भैया light always travels in a straight line. लाइट आप यहाँ से चमकाएंगे, ये प्यूपल है, लाइट यहाँ से घूम के टेम्पोरल रेटिना को नहीं हिट करेगी, लाइट स्ट्रेट जाएगी और नेजल रेटिना को हिट करेगी. सो इफ यू आर शाइनिंग लाइट फ्रॉम द टेम्पोरल साइड, यू आर टेस्टिंग द नेजल रेटिना. नीचे से शाइन कर रहे हैं तो सुपीरियर रेटिना, ऊपर से कर रहे हैं इंफीरियर रेटिना, और इधर से कर रहे हैं तो टेम्पोरल रेटिना. ठीक है, तो जहां से लाइट शाइन कर रहे हैं आप उसके ऑपोजिट रेटिना को टेस्ट करते हैं. यू ऑल शुड प्रैक्टिस डूइंग PR, projection of rays. ठीक है, and projection of rays should be accurate. If it is not, then it's a little bit of a question mark. Okay. Pupillary reaction देखना चाहिए और ability of pupil to dilate well. Pupillary reaction को हम जब describe करते हैं तो हम बोलते हैं brisk. मतलब जैसे आप लाइट जलाएंगे brisk. और pupillary reaction दो तरह के होते हैं, direct और consensual. आप पेशेंट के ऐसे हाथ रखिए, आप यहाँ पे लाइट जलाइए, ये वाला कंस्ट्रिक्ट होगा और कंसेंशुअल ये वाला भी कंस्ट्रिक्ट होगा, बिकॉज ऑफ बायलैटरल कनेक्शन एट द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस. यहां से जो इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने इस आंख में लाइट जलाई तो ये तो कंस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, या इस आंख में लाइट जलाई तो एफरेंट पाथवे ये है. यहां से जो इफेरेंट पाथवे आता है वो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से दोनों आंख में जाता है. ठीक है, देयर इज बायलैटरल, तो दोनों आंख का प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए. तो आपने अगर इसमें लाइट जलाई और ये कंस्ट्रिक्ट हुआ और ये नहीं हो रहा है तो इसका इफेरेंट खराब है. अगर आपने इसमें लाइट जलाई और ना ये कंस्ट्रिक्ट हो रहा है ना ये कंस्ट्रिक्ट हो रहा है तो इसका एफरेंट खराब है ना, जा ही नहीं रही है इससे, तब दोनों ही नहीं हो रहा है. ठीक है, सो आपको प्यूपिलरी रिएक्शन देखना है. प्यूपिलरी रिएक्शन हमेशा कैटरैक्ट में ब्रिस्क रहेगा. प्यूपिलरी रिएक्शन कभी प्योर कैटरैक्ट में अफेक्टेड नहीं हो सकता है. अगर प्यूपिलरी रिएक्शन खराब हो रहा है मतलब कोई ऑप्टिक नर्व डिजीज है, ठीक है, या वेरी सिवियर रेटिनल डिजीज. ओके. Ability of the pupil to dilate well, I told you. Slit lamp examination हम करेंगे to evaluate the type and amount of cataract and any other ocular pathology or infections in and around the eye. तो slit lamp examination आप करेंगे, कोई nidus of infection देख लेंगे जिसमें कि स्टाई, chronic conjunctivitis and acute और chronic dacryocystitis ये सब रहेंगे. ठीक है, ये important वाले हैं. मतलब
इसके अलावा आप और भी देखेंगे, पेशेंट को ग्लोकोमा तो नहीं है, कोई रेटिना की, मतलब कोई भी और बीमारी, आप आंख में कोई भी और बीमारी ढूंढेंगे कैटरैक्ट के अलावा, यूवियाइटिस, एनीथिंग। तो जो भी बीमारी का नाम उस समय एग्जाम में याद आए, बोलते हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं, आंख की में कैटरैक्ट के अलावा कोई और बीमारी तो नहीं है ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई और बीमारी है तो नजर उससे भी कम हो सकती है, ठीक है, नॉट जस्ट इससे। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल नहीं है तो आप जैसे इंसिजन देंगे तो पेशेंट में कोरोइडल हेमरेज होने की चांस है, ठीक है। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल होना है, अगर नहीं है तो हम पेशेंट को रख के पहले प्रेशर लोअरिंग एजेंट्स देते हैं, जब नॉर्मल हो जाता है प्रेशर उसके बाद ऑपरेट करते हैं। सिरिंजिंग करा जाता है, सिरिंजिंग यहाँ से की जाती है कि वही है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। हम लोग सिरिंजिंग, आईओपी ये सब रूटीनली करते हैं। इफ पॉसिबल फंडोस्कोपी टू रूल आउट डिजीजेस ऑफ द रेटिना, ठीक है। फंडोस्कोपी मतलब हम फंडस, रेटिना का जो फंडस है, जो सेंट्रल पार्ट है, उसको देखते हैं, ठीक है। कंजंक्टिवल स्वॉब जो है, इसमें मैंने यूरिन लगता है मैंने हटा ही दिया। यूरिन एग्जामिनेशन आपकी किताबों में लिखा रहता है, आप एग्जाम में अगर थियोरी आता है तो आप लिख दीजिएगा, बोलना है वाइवा में बोल दीजिएगा। रूटीनली हम लोग, तुम लोग करा रहे हो वहां पे यूरिन? अरे अच्छा, ऐसे यहाँ पे हो रहा है, वेरी नाइस। ऐसे जनरली यूरिन कोई नहीं कराता है अनलेस कि आपको लग रहा है कि इसको कुछ है, किडनी विडनी डिजीज। तो कंजंक्टिवल स्वॉब लेके और उसका कल्चर कराते हैं, जो कि बुकिश है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई कराए कि कंजंक्टिवा में कोई पैथोजेन तो नहीं है, ये होता नहीं है, बट एनीवे। बी स्कैन, B scan is a method by which you can see at least grossly the retina through opaque media. Opaque media मतलब कैटरैक्ट है। तो कैटरैक्ट है, मैंने बार बार आप लोग को बोला कि अगर कैटरैक्ट बहुत ज्यादा है तो पीछे रेटिना तो दिखेगा नहीं हम लोग को, नहीं तो अगर कैटरैक्ट नहीं होता है हम प्यूपल के थ्रू रेटिना देख लेते हैं। Do you know so many departments send the patient to us for seeing the retina? Why are they so interested? है ना? All departments, medicine will send, psychiatry will send, surgery will send, pediatrics will send, they all send to us. Why? Because the retina is the only place where we can directly see the blood vessels, and जो भी retinal blood vessels में बीमारी दिखेगी वो शरीर के हर blood vessel में हो रही है। डिफरेंस बस ये है कि हम retina में देख सकते हैं, ठीक है। और of course other reasons also, papilledema वगैरह देखने के लिए। So B scan is ultrasound of the eye, ठीक है। इसमें हम आंख में प्रोब रख के और बेसिकली देख सकते हैं, बेसिक इतना देख सकते हैं कि रेटिना अटैच तो है, और कोई रेटिनल बीमारी एज सच नहीं दिखेगी बहुत डिटेल में, बट अटैच रेटिना दिख जाएगा। सिस्टमिक एग्जामिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स आप एक्सक्लूड करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कई पेशेंट ना एकदम ऐसे आते हैं, ओल्ड एकदम ऐसे बेंट रहते हैं, आप उनको, इट्स, आई मीन आई हैव ऑपरेटेड ऑन 3 सच पेशेंट्स टिल नाउ। आप लोग को अटेंडेंस नहीं मिलेगी, आई एम सॉरी, दैट पर्सन इज कंटिन्यूइंग टू टॉक, आप लोग को अटेंडेंस नहीं मिलेगा। एंड थर्ड टाइम यू स्पोकन आफ्टर आई स्कोल्डेड लास्ट टाइम, आई कांट इग्नोर फॉर सो लॉन्ग, आप लोग को भी अटेंडेंस नहीं मिलेगी, ओनली यू पीपल विल गेट अटेंडेंस अभी तक। So these people who are so जिनको इतना severe, this would be kyphosis, I think, scoliosis. Side वाला क्या होता है? S-shaped, वो scoliosis. This is kyphosis. This is kyphosis. This is lordosis. So kyphosis जिनको रहता है, आप उनको जब लिटाने की कोशिश करें वो लेट ही नहीं पाते हैं। They spend their life sleeping on their sides. वो पीठ के बल, अब वो लेट ही नहीं पा रहे हैं तो आप उनको कैटरैक्ट सर्जरी कैसे करेंगे? उनका सर उठा रहता है बेड से इतना, देयर स्पाइन इज फिक्स्ड लाइक दिस। सो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, बैठ करके उसके थ्रू करते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप को रेज कर देते हैं, हम लोग खुद खड़े हो जाते हैं, ठीक है। एंड पेशेंट का जो, अब उसका ऐसे, उसका सर यहाँ है, पेशेंट के सर के नीचे बहुत सारे मल्टीपल जो ओटी टॉवल्स होते हैं वो लगा के, and then ऐसे देख करके then we operate. So I have operated 3 patients like that. Many surgeons will, I mean,
इट इज डिफिकल्ट, बट ये सारी चीजें आपको देखनी होती है कि पेशेंट लेट पाएगा। कुछ पेशेंट होते हैं उनको लेटते ही खांसी आने लगती है, दे हैव पोस्ट नेजल ड्रिप और समथिंग, वो जैसे ही लेटते हैं उन लोग को खांसी आने लगती है, ठीक है। सो सच पेशेंट्स ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप उनको एंटीटसिव दे दीजिए बिफोर सर्जरी, क्योंकि सर्जरी में आपने बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट्स आंख के अंदर डाले, वो थोड़ा सा ऐसे भी हिला वो इंस्ट्रूमेंट इधर उधर कहीं टच हो जाएगा एंडोथेलियम में या कहीं, और या पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर हो जाएगी, आपकी सर्जरी बेकार हो जाएगी। आप तब पेशेंट को ये नहीं कह सकते अरे आप खा रहे हम तो अच्छा ही कर सकते हैं, यू कांट से दैट, है ना, यू कांट से दैट। It is your lookout that you have managed it pre-operatively well. Okay. ENT and dental checkup I've already told you. Macular function test में तुम लोग प्लीज थोड़े से लिख लो। आपसे अगर macular function नहीं, मैं जो बता रही हूँ बस वही वाले लिखना। तुम लोग लिखो perception of light, color perception, don't talk, perception of light, color perception, 2-point discrimination test, 1 लिखो, 2 लिखो, number 5 लिखो, 5, number 6 लिखो, number 6, number 9 लिखो, number 9, 6 के बाद 9, number 10, 9 and 10, बस बहुत है। So 1, 2, 5, 6, 9, 10, ठीक है, बस इतने ही आपको याद करने हैं। परसेप्शन ऑफ लाइट आई टोल्ड यू, कलर परसेप्शन, पेशेंट अगर सी देयर इज अ डिफरेंस, आपकी खुराना में जहां तक मुझे मालूम है रेटिनल फंक्शन टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। मैक्युलर फंक्शन टेस्ट, नाउ रिमेंबर कलर परसेप्शन इज नॉट अ रेटिनल फंक्शन टेस्ट बिकॉज इट इज अ मैक्युलर फंक्शन टेस्ट। अगर हम पेरिफेरल रेटिना की बात करें तो पेरिफेरल रेटिना में कोन्स होते ही नहीं है, और अगर कोन नहीं है तो पेशेंट को कलर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कलर इज अ फंक्शन ऑफ कोन्स। तो हम रेटिनल फंक्शन टेस्ट की बात करें, ठीक है, मैक्युलर रेटिना में आता है, बोल सकते हैं, बट आप लोग के खुराना में रेटिनल फंक्शन टेस्ट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे एग्जाम में रेटिनल फंक्शन टेस्ट बोले या मैक्युलर फंक्शन, क्योंकि मैक्युलर फंक्शन टेस्ट विल बी अ रेटिनल फंक्शन टेस्ट, but a retinal function test may or may not be a macular function test because macula एक छोटा सा पार्ट है रेटिना का, ठीक है। सो कलर परसेप्शन, उसको कलर परसीव होना चाहिए। 2-point डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट कैसे करते हैं, रूल ऑफ 2 याद रखना, 2 pinholes 2 inches apart made on a cardboard or a piece of paper held 2 feet from the eye. So remember nothing is in SI units. It is 2 inches and 2 feet. ठीक है, so 2 pinhole. तो आप 2-point discrimination टेस्ट कर सकते हैं कि आप पेशेंट एक पेपर में दो अपना जो बॉल पॉइंट पेन है उससे 2 छेद बना दे और 2 inches अपार्ट, ठीक है, और पेशेंट की एक आंख बंद करवा दें और उस आंख से 2 फीट दूर रखे और उसके पीछे से टॉर्च जलाए। अगर पेशेंट को 2 लाइट दिख रही है तो उसका मैक्युला इज फाइन। मैडॉक्स रॉड टेस्ट भी मैंने लिखवाया था ना। मैडॉक्स रॉड जो है, आप लोग जब भी क्लिनिक्स में आएंगे तो मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं दिखा दूंगी। इट इज वेरी वेरी सिंपल। मेरे पास अभी वो वाला शायद होगा नहीं तो मैडॉक्स रॉड एक जैसे जो हम लोग आपने कभी चश्मे की जांच कराई है तो आप देखते होंगे लेंसेज डालते हैं निकालते हैं, तो उसी तरह का एक लेंस होता है एक्सेप्ट दैट इज रेड इन कलर एंड उसमें पैरेलल सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। एंड दैट कन्वर्ट्स अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इनटू अ लाइन, हाँ, इनटू अ लाइन। तो अगर आपने सिलेंडर्स को ऐसे पकड़ा है तो लाइन वर्टिकल बनेगी, अगर आपने सिलेंडर्स को ऐसे पकड़ा है तो लाइन हॉरिजॉन्टल, मतलब लाइन इज एट 90 डिग्रीज टू द डायरेक्शन ऑफ द सिलेंडर्स। तो आपको मैडॉक्स रॉड आप कैसे पहचानेंगे, आप देखेंगे वैसे ये गोल सा जैसे लेंसेज होते हैं, पर बीच में ट्रांसपेरेंट लेंस की जगह रेड होगा कलर और आपको ऐसे 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 दिखेंगे सिलेंडर्स उभरे हुए, मतलब प्लेन रेड ग्लास नहीं होगा, उभरे हुए सिलेंडर्स दिखेंगे। दैट्स द मैडॉक्स रॉड। कैसे टेस्ट करते हैं,
तो आप पेशेंट की एक आंख के सामने मैडक्स रॉड पकड़वा दीजिए पेशेंट से, ठीक है, और आप फिर थोड़े दूर खड़े होके एक राउंड लाइट जलाइए। तो पेशेंट उस राउंड लाइट को एक आंख से तो ऐसे ही देख रहा है और एक आंख से थ्रू द मैडक्स रॉड। तो पेशेंट को दिखता क्या है, अलग अलग चीजें दिखती है, एक तो ऐसे राउंड दिखेगा और एक लाइन दिखेगी, दोनों ऐसे सुपर इम्पोज होनी चाहिए। अगर पेशेंट ऑर्थोफोरिक है मतलब उसके दोनों विजुअल एक्सिस कंबाइन है, ऐसे सुपर इम्पोज हो जानी चाहिए, इस आंख की राउंड लाइट और इस आंख की लाइट। और आप एकदम उसको ऐसे करके पकड़ सकते हैं तो लाइट ऐसे हो जाएगी, तब ऐसे सुपर इम्पोज होनी चाहिए। अगर पेशेंट को एक लाइट और एक राउंड दिख रहा है तो मतलब एक लाइन और एक राउंड दिख रहा है तो उसका मैक्युलर फंक्शन ठीक है। एंटॉप्टिक विजुअलाइजेशन, अगर आप एक नेकेड बल्ब को आंख पे लेके और ओवर द लिड ऐसे ऐसे रब करें तो आपको अपने आंख के ब्लड वेसल्स दिखेंगे। यू कैन ट्राई इट विद अ टॉर्च। आजकल तो पता नहीं कैसे टॉर्च आते हैं, पुराने जमाने में जो टॉर्च आता था तो उसका बल्ब एक्सपोज हो जाता था। तो आप उस बल्ब को अगर आंख पे ऐसे ऐसे रब करेंगे तो यू कैन सी योर द रेटिनल ब्लड वेसल्स, यू कैन सी देम विद दिस आई। सो दैट इज, डोंट थिंक दैट मेरा तो कुंडलिनी जाग गई, डोंट थिंक दैट कि अरे वाह हमको पता नहीं क्या दिखने लगा। डोंट गो एंड टेल योर फ्रेंड्स दैट आई हैड अ otherworldly experience. No, it's a known scientific fact. You can just see your blood vessels. That is called entoptic visualization. And और मैंने क्या लिखवा दिया था, इतना ही लिखवाया था। लेजर इंटरफेरोमेट्री, इसमें क्या होता है ना कि जब पूरा मैच्योर कैटरैक्ट नहीं होता है तो कैटरैक्ट के बीच बीच में ट्रांसपेरेंट जो एरियाज होते हैं उससे लेजर के थ्रू रेटिना पे पूरा स्नेलन, तो ये जो है ना लेजर से पूरा स्नेलिन्स चार्ट को प्रोजेक्ट किया। आई डोंट नो, आई नेवर सीन इट फ्रैंकली, है ना, आई जस्ट नो द थ्योरेटिकल, आई जस्ट, मुझे उतना ही पता है जो आपकी किताब में लिखा है। तो इस लेजर से पूरे स्नेलिन्स चार्ट को थ्रू दी स्मॉल पॉकेट्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंस पूरे रेटिना पे प्रोजेक्ट किया जाता है और फिर पेशेंट का विजन ले लिया जाता है। एनीवे, ये मैंने लास्ट टाइम आप लोग को बताया था। आप लोग का मन में अगर कोई भी ये विचार है कि हमें ये जानना चाहिए कि नहीं, आप लोग को 100% ये जानना चाहिए। मैंने आप लोग को एक बार क्लियरली बता दिया था कि मैं एग्जाम लेने कहीं पे गई थी, वहां किसी टीचर आई थी, एक और एग्जामिनर आई थी, एंड शी आस्क्ड IELTS power calculation and student said I didn't know. So she was like, so who should know? I should know. But she was very annoyed and upset. So please you should know. ठीक है। ये जो नीचे मैंने लिखा है न्यूअर फॉर्मूले लाइक SRKT, हॉलिडे 1, हॉलिडे 2, ये सब इनके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बस एक कांस्टेंट तक ये है, उस दिन मैंने कैलकुलेट भी करा दिया था, ये दक्ष बैठा है शायद सामने, इसने दोनों का कैलकुलेट करके भी बता दिया था पूरा। तो आप लोग को कैलकुलेशन पता होना चाहिए। A is a constant for the type of IOL. L is axial length of the eye जो normal 23.5 24 होती है। केराटोमेट्री रीडिंग 42 से 45 के बीच में कुछ होती है, और P आप पावर निकाल ही रहे। ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट, so this part Dr. Chetan had already covered, so wait, let me just cover this. Complications of cataract surgery ड्यू टू लोकल एनेस्थीसिया। हम लोग आंख में सुई भोग भोग करके और पेरीबल्बर एनेस्थीसिया कहते हैं वो देते हैं। आप लोग को बता दिया गया होगा कल कि हम लोग पेरीबल्बर, पहले जमाने में रेट्रोबल्बर एनेस्थीसिया दिया जाता था, उसमें भी सुई यहीं भोगी जाती थी। मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3 के जंक्शन में, यहाँ पे एक इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, सॉरी लैटरल 2/3 एंड मीडियल 1/3 के, एक यहाँ लगाते हैं और एक यहाँ लगाते हैं, लैटरल मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3 के जंक्शन में, ठीक है, एक इधर और एक इधर इंजेक्शन लगाते हैं। सुई कितनी अंदर डालते हैं, पूरी 24 नंबर नीडल, 24G की नीडल जो है वो पूरी अंदर डालते हैं, ठीक है। क्या डायरेक्शन होता है नीडल का, एब्सोल्युटली स्ट्रेट, यू डोंट टर्न इट टुवर्ड्स द आई और एनीथिंग। सो दिस इज पेरीबल्बर ब्लॉक। कहां पे जा रहा है एनेस्थीसिया, इन द पेरिफेरल स्पेस, एक्स्ट्रा कोनल स्पेस कह लो, ठीक है। एक्स्ट्रा मसल्स का एक कोन बनता है ना जो आई को हिलाती है इधर उधर, वो एक कोन में एन्युलस ऑफ जिन से ओरिजिन करती है, तो ये मसल कोन है। मसल, तो ये कोनल स्पेस है उसके अंदर वाली, तो एक्स्ट्रा कोनल इज द स्पेस आउट अराउंड इट इन दी ऑर्बिट, तो एक्स्ट्रा कोनल स्पेस में हम इंजेक्ट करते हैं। ब्लाइंड प्रोसीजर है, आपको दिख तो रहा नहीं आपकी नीडल कहाँ जा रही है। देयर आर चांसेस कि ग्लोब परफोरेशन हो जाए, खास करके थोड़ी बड़ी आईबॉल है, आप सोच तो रहे कि हम ऐसे जा रहे हैं और आप चले गए ऐसे,
और जिन लोग ने बहुत लगाए हैं, ऐसा हुआ भी है कि स्टूडेंट को आइडिया नहीं लगा है, जिन लोग ने बहुत लगाया उनको पता है कि कितनी फील आती है, हम कितने टिश्यू को जब पियर्स कर रहे हैं तो कितना प्रेशर, जिनको नहीं पता है वो स्क्लेरा तो काफी हार्ड होता है, हो सकता है उसको भोग दे। आई हैव सीन दैट एंट्री वूंड, एग्जिट वूंड, आई एकदम कोलैप्स्ड एंड सॉफ्ट, बट वेरी रेयर, ओके, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन, बट ऐसा हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू पोस्टपोन द सर्जरी। दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो पेरीबल्बर में तो ज्यादा नहीं मिलता है, लोकल एनेस्थीसिया के ही मैं बता रही हूँ, रेट्रोबल्बर में मिलता है, जिसमें कि बहुत बड़ी नीडल 3.5 इंचेस की नीडल थोड़ा सा एंगल करके डाली जाती थी, तो उससे ऑप्टिक नर्व डैमेज बहुत होता था और ग्लोब परफोरेशन भी, इसलिए उसको अब रोक दिया गया। रेट्रोबल्बर अब नई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, अब पेरीबल्बर दिया जाता है। दूसरा है एनेस्थीसिया में लिग्नोकेन जो है, रिमेंबर सब लोग कहते हैं लिग्नोकेन, जाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट, जाइलोकेन इज लिग्नोकेन, तो जो मैंने जाइलोकेन आपको सेंसिटिविटी टेस्ट बताया, रिमेंबर जो एनाफाइलैक्सिस होता है ना, वो जाइलोकेन से उतना नहीं होता है जितना कि उसमें जो प्रिजर्वेटिव होता है उससे होता है। और क्या रिएक्शन होता है, एकदम ही एनाफाइलैक्टिक शॉक, मतलब पेशेंट कैन डाई विद इन सेकेंड्स। सो वन थिंग मोर यू शुड नो, क्या आपने जाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट कैसे करते हैं, हम 1 cc सिरिंज में थोड़ा सा लेंगे और हम 0.1 ml यहाँ पे सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करेंगे, मतलब एक बूंद इंजेक्ट करेंगे, एक ब्लेब बना देंगे। जिन बच्चों ने BCG वैक्सीन दी होगी या कुछ, उनको पता होगा। अच्छा, तुम लोग तो अभी इंटर्नशिप में नहीं पहुंचे हो, तो जब दोगे तो अगर कहीं ऐसी ड्यूटी पड़े ना तो कूद कूद के बोलना हमको देना है, हमको देना है, क्योंकि वो चीज जिंदगी भर याद रहती है। तो अगर मेडिसिन में है तो ये जो हम लोग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे छोटा सा सबक्यूटेनियस ब्लेब बनाते हैं और उसको पेन से गोल कर देते हैं और लिख देते हैं टाइम, और पेशेंट का पल्स रेट लेकर के और लिख दिया जाता है, और पेशेंट को बता दिया जाता है आपको कुछ अजीब लगे तो बताइए, एंड देन यू आर सपोज टू ऑब्जर्व इट आफ्टर हाफ आवर, 1 hour, 2 hours कि कुछ वहां पे एक्स्ट्रा स्वेलिंग टाइप का तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही पेनिसिलिन का भी किया जाता है, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो जाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट में भी उनको एनाफाइलैक्सिस हो सकता है। आई हैव नेवर सीन इट इन माय लाइफ, बट इट इज डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। My own mother was allergic to penicillin and उनका penicillin sensitivity test हुआ था, उनका पूरा हाथ स्वेल कर गया था and she was wheezing. So उनका रेड में डॉक्टर ने लिखा था कि never to be given penicillin. So हो सकता है कि people are so allergic. So ये आप जब करते हो, आप पेशेंट को बता दें कि कुछ अजीब लगे, घबराहट लगे, तो आप बताइएगा। Is xylocaine sensitivity testing 100% for foolproof? क्या xylocaine sensitivity testing आपने कर ली और उसमें पेशेंट को रिएक्शन नहीं हुआ, तो क्या 100% फुल प्रूफ है कि उसको इंजेक्शन लगाते हुए भी नहीं होगा रिएक्शन? नहीं। Xylocaine sensitivity test normal आया, उसके बाद भी there is a chance, but at least you will be medico legal, very small, very small. देखो ऐसे ही anaphylaxis is a very small chance. हम लोग कितनी सर्जरीज करते हो, मैंने लाइफ में कितने देखे होंगे, 3 or 4, ठीक है, not more than that, 3 or 4. Severe वाला मे बी 3 or 4 मे बी। तो बस Xylocaine आपने सेंसिटिविटी टेस्ट किया है तो एटलीस्ट यू आर मेडिको लीगली सेफ कि हमने ये किया था, दो दैट इज नॉट 100% कि उसके बाद नहीं होगा। तो दिस इज ड्यू टू लोकल एनेस्थीसिया। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो आप एक दिन पहले से बताना शुरू करिए। किसी भी सर्जरी के पहले पेशेंट को बहुत एंग्जाइटी होती है, ठीक है, दो दैट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, बट इस एंग्जाइटी की वजह से उसको एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है, एसिडिटी। इसीलिए हम लोग को टैबलेट एंग्जिट, टैबलेट पैंटॉप, ये सब एक दिन पहले से पेशेंट को खिला देना चाहिए कि पेशेंट सर्जरी के दिन कूल और रिलैक्स्ड आए, क्योंकि हमारा पेशेंट तो बेहोश भी नहीं होता है, जगा रहता है, सिर्फ उसकी आई एनेस्थेटाइज्ड है ना। तो जो एंग्शियस, कुछ तो बहुत मजे में बात भी करते रहते हैं, जैसे एक बार आई रिमेंबर माय मैथ्स इज वेरी बैड, लाइक माय मैथ्स इज लाइक रियली बैड, मतलब recently almost every week I say something that my husband just looks at me like, is she normal?
बिकॉज आई जस्ट कांट, मतलब आई इट्स कुछ, मैं अभी 36, क्या चीज तो अभी मैंने बोला था एनीवे कुछ, मतलब क्या मेरा हिसाब किताब रहता है कुछ तो नहीं। अभी कुछ वो कह रहे थे कि नहीं वो 1150, तो मैंने कहा 1150, मैंने कहा कि नहीं तो वो 10 ही पैसे तो कम हुए। ही सर मैं टाइम की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। सो मुझे क्यों लगा कि 1160 पे इट विल बिकम 12, मतलब आई जस्ट थिंग्स लाइक दैट रियली वियर्ड। वंस आई सेड कि मुझे 500 रुपए चाहिए, आप मुझे छह से तो आई थिंक करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा आप, या मुझे पता नहीं कितने चाहिए, छोड़ दो जो भी हो, मतलब मैंने 500 मांगे थे, पर जो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ऐसे दीजिए तो उससे 300 हो रहे थे, तो बहुत ही मतलब वेरी वियर्ड। सो व्हाट वाज आई सेइंग बाय द वे? मैं मैथ्स क्यों पे आई क्यों? हाँ हाँ हाँ, पेशेंट कुछ तो बहुत ही कूल रहते हैं। जैसे एक बार आई वाज जस्ट टॉकिंग टॉकिंग टू माय ओटी असिस्टेंट एंड आई वाज कुछ, हम लोग कुछ कैलकुलेट, मैंने कहा कि ये इतना पे किया है ना तो उसमें तो इतना ये हो जाएगा, तो ऐसे वैसे नहीं तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? तो बोलता है अभी मैडम हाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो पेशेंट नीचे से बोलता है सपोजिंग कुछ 72 या कुछ में 72, वो सब सुन रहा था, वो पूरा उसको लगा मैं ही बता दूं, ना मैडम को आ रहा है ना इसको आ रहा है, मतलब इट वाज अ बिगर नंबर, बट उसने बता दिया। सो सब आर रियली कूल है ना, एंड दे कीप टॉकिंग टू यू एंड कितना टाइम लगेगा टाइप्स, दैट वे। बट सम आर वेरी एंग्शियस। वी हैव हैड पेशेंट्स लाइक वो बीच सर्जरी में हटा बटा के उठने लगते हैं, तो उठेंगे तो वो माइक्रोस्कोप से टकरा जाएंगे, उनके सर के ऊपर रहता है, मतलब इट्स वेरी स्कैरी। इंस्ट्रूमेंट आंख के अंदर है, एकदम से हिल गए, मतलब बहुत ही। सो एनीवे सो रेट्रोबल्बर हेमरेज, ग्लोब परफोरेशन, ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स। आप जब भी आई में खास करके कोई मसल पकड़ते हैं, और हम लोग कैटरैक्ट सर्जरी में कोई मसल पकड़ते हैं आई की? अरे कल तो स्टेप्स बताया, परसों तो बताए गए स्टेप्स है। सोचो सोचो, अरे कोई मसल पकड़ के कुछ करते हैं आई को स्टेबलाइज करने के लिए, फिक्स करने के लिए है? कोई मसल नहीं पकड़ते हैं। लिवेटर पकड़ लेते हैं, लिड की मसल है भाई, कैसे पकड़ेंगे? सुपीरियर, हु सेड दैट? You are getting your attendance. Very good, and you also latched the doors for me. सुपीरियर रेक्टस मसल पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं क्या भाई? तो फर्स्ट ही स्टेप है ना, आप जब तक सुपीरियर रेक्टस मसल पकड़ के आई को स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो आप सर्जरी कैसे करेंगे? फेको में नहीं पकड़ना पड़ता है, बट बाकी हर सर्जरी में तो करते ही है। तो जब भी हम मसल पकड़ते हैं ना, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स। ऑक्यूलर सर्जरी में मिलता है ऐसे भी, जिसमें कि इवन एनेस्थीसिया में मिल सकता है, जिसमें कि एकदम से ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, बहुत सिवियर ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, मतलब पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, सो दैट इज वन। इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, मतलब ड्यूरिंग सर्जरी, डिटैचमेंट ऑफ डेस्मेज मेम्ब्रेन। मैंने आप लोगों को बताया एंडोथीलियम होता है, एंडोथीलियम के जस्ट ऊपर डेस्मेज मेम्ब्रेन होती है। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ छू छा दिया तो एंडोथीलियम तो छोड़िए, डेस्मेज मेम्ब्रेन पूरी ऐसे फ्लैप ऐसे निकल आती है। जस्ट द गुड थिंग इज कि आप उसको वापस रिपोजिट, आप कुछ एक ना पतले पतले इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे आयरिस रिपोजिटर टाइप का, तो आप उससे वापस उसको ऐसे चिपकाइए और उसके नीचे बड़ा सा एयर बबल इंजेक्ट कर दीजिए। तो एंटीरियर चेंबर में ये जो एयर बबल है, ये उस डेस्मेज मेम्ब्रेन को टैम्पोनार्ड कर देता है। टैम्पोनार्ड मतलब वो चिपका देता है वापस अपनी जगह पे। ठीक है, और जब मतलब फिर उसके बाद वो चिपक ही जाती है। ठीक है, यू कैन सी इट मे बी द नेक्स्ट डे द आउटलाइन, बट वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। सो डेस्मेज डिटैचमेंट हो सकता है। डैमेज टू कॉर्नियल एंडोथीलियम, कॉर्नियल एंडोथीलियम के डैमेज से, दैट बॉय इन द ब्लू शर्ट, बताओ बेटा। You're the only one sitting with girls, so obviously I will see you faster. बताओ, कॉर्नियल एंडोथीलियम डैमेज से क्या प्रॉब्लम आएगी? मैंने बहुत बार बताया है। Anyone from that group, कॉर्नियल एंडोथीलियल डैमेज से क्या प्रॉब्लम आएगी और क्यों? Anyone from here? Yes.
नो। हाँ बताओ। हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। आई नो यू वेरी टॉल, बट तब भी बताओ। हाँ, वेरी गुड। क्यों? कैसे करता है? अरे रुको, ऐसे तो कोई नहीं बोल रहा था, अब वो बोल रहा है, उसको बोलने दो। शुभ, जय शुभ, राइट। हाँ, सो एटलीस्ट आई रिमेम्बर पार्ट ऑफ योर नेम। तुम बैठ जाओ। हाँ बताओ, कैसे मेंटेन करता है ट्रांसपेरेंसी? कहाँ होता है वो? एंडोथीलियम में। तो अगर एंडोथीलियम डैमेज हो गया तो जो सेल्स डैमेज हो गए वो वापस ग्रो कर जाएंगे? नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है? वहां पे गैप रह जाता है। Wonderful. He's just given the complete answer. Very good. Sit down. Excellent. So, if you knew that, why weren't you raising your hand? But anyway, you would know. Ha, don't raise your hand. You're an SR anyway. So, you have already studied whole of Ophtha, so you know. So, he's absolutely right. Corneal endothelium damage में जो endothelial cells damage हो जाते हैं, they are never replaced. I told you we are born with a fixed number of cells, 4000 cells per millimeter cubed. ठीक है? और थ्रू आउट लाइफ ये कम होते जाते हैं। जिस एज पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे लगभग 2500 सेल्स से 2000, बहुत ओल्ड पेशेंट्स हुए 1500, 1000, 800 से नीचे तो हम ऑपरेट ही नहीं करते। ठीक है? एंड दिस इज सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब्ड। ओके, नाउ जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, आसपास के सेल्स एनलार्ज करके और उनकी जगह ले लेते हैं। दे आर नेवर रिप्लेस्ड। एंड this corneal endothelial cell has a pump which is called the sodium potassium ATPase pump, which continuously pumps water out of the cornea. इसीलिए cornea transparent रहता है। ठीक है? अगर ये पंप ही कम, सपोजिंग 100 पंप से cornea transparent रह रहा है, उसमें से आपने 50 को डैमेज ही कर दिया, तो बाकी 50 मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है? जनरली ठीक ही रहता है, ओवर टाइम ठीक हो जाता है, समटाइम्स cornea डिकम्पेंसेट हो जाता है, एकदम ही मतलब इजी हो जाएगा। जोन्युलर डायलिसिस, जो कैप्सुलर बैग है वो चारों तरफ जोन्यूल से सिलरी बॉडी से अटैच्ड है, उसी में लेंस है। आपने एंटीरियर कैप्सूल काटा, आपने लेंस निकाल दिया, आपने कॉर्टिकल मैटर वॉश किया और उस कैप्सुलर बैग में आपने आईओएल डाला। ठीक है? अब ये जो जोन्युलर है, अगर जोन्युलर डायलिसिस हो जाए तो वहां से कैप्सुलर बैग श्रिंक हो जाएगा, तो आप हो सकता है लेंस ही ना डाल पाए। पोस्टीरियर कैप्सुलर रप्चर इज द वर्स्ट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। अगर वो रप्चर हो गई तो आप लेंस कहाँ डालेंगे? तो मतलब that's not a good complication to get. Complications of cataract surgery, early post-operative. Now we are coming to more intraoperative complications. Now we are coming to post-operative complications. Wound leak and complications related to it. आपने पट्टी खोली और आप देख रहे हैं कि अरे एंटीरियर चेम्बर एकदम कोलैप्स सा है, मतलब कि आइरिस और कॉर्निया लग रहा है एकदम चिपके हुए हैं। ऐसे तो आइरिस और कॉर्निया में एक डिफरेंस होता है और बीच में एक्वेस भरा रहता है, मतलब कि आपने जहां इंसिजन दिया था वहां से एक्वेस लीक कर रहा है। ठीक है? जो बच्चे लिखना चाहते हैं आप लोग लिख लीजिए कि वूंड लीक को हम सीडल्स टेस्ट से देखते हैं। सीडल्स टेस्ट लग रहा है पता नहीं कौन सा टेस्ट है, होता कुछ नहीं है, हम फ्लोरेसेंट एक ड्रॉप डालते हैं। अगर वूंड लीक है तो जहां हमने फ्लोरेसेंट डाली है ना, जहां वूंड के मतलब इंसिजन साइट पे डाल देते हैं, वहां से अगर एक्वेस लीक कर रहा है तो वहां से फ्लोरेसेंट डाइल्यूट होकर के, जैसे ऑब्वियसली आप सोचिए कि आपने एक रंग डाल दिया कहीं पे और आप वहां से फिर एक पानी की धार बह रही है, तो जहां से धार बह के जा रही है वहां से वो रंग हटता जाएगा। दैट इज सीडल्स टेस्ट। आपने फ्लोरेसेंट डाला आंख में और आप उसके बाद स्लिट लैम्प पे देखते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि फ्लोरेसेंट ऐसे वॉश आउट हो रहा है, मतलब कि एक्वेस निकल के बह बह के आ रहा है बाहर, तो वूंड लीक इज वन कॉम्प्लिकेशन। आइरिस प्रोलैप्स, आपने जहां पे इंसिजन दिया वहां से आइरिस बाहर आ रहा है, फ्लैट एंटीरियर चेम्बर, अगर वूंड लीक है तो होगा। सेकेंडरी ग्लोकोमा लर्न कर लेना। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन इज अ वेरी बैड कॉम्प्लिकेशन, वेरी बैड। आई कैन बी लॉस्ट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन में। लेंस मैटर छूट गया है, उसकी वजह से यूवियाइटिस हो रहा है। आईओएल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें तुम लोग लिख लो। मिसप्लेस्ड आईओएल, ये भी एक्चुअली अर्ली में ही मिल जाता है। ठीक है ना? मिसप्लेस्ड आईओएल, आईओएल ठीक से आपने तो डाला था, आप देख रहे हैं अगले दिन अरे उसका एक हैप्टिक बाहर है, अरे नीचे सरका हुआ है, अरे इधर है,
मतलब प्यूपल में आपको दिख रहा है आईओएल का एज दिख रहा है, जबकि एकदम सेंटर्ड होना चाहिए प्यूपल के पीछे, मतलब इस सब टाइप के कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं. There has to be late post-operative complications also. What happened to them? लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो आपको मंथ्स टू इयर्स बाद मिले. मंथ्स है सिस्टोइड मैक्युलर एडीमा. मैक्युलर जो है उसमें एडीमा हो जाता है, बाहर से देखने में लगेगा कितनी अच्छी सर्जरी की है, सब तो ठीक है, और पेशेंट का क्योंकि मैक्युलर पे एडीमा और मैक्युलर से ही हम देखते हैं सब चीज, तो पेशेंट का विजन नहीं अच्छा रहेगा. इसमें जनरली सर्जन की कोई खास गलती नहीं रहती है. हाँ, जिन केसेस में पोस्टीरियर कैप्सुलर रप्चर हुआ है और वहां से विट्रियस आ गया, ये सब है, उसमें ज्यादा मिलता है. पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपैसिफिकेशन, लिखिए आप लोग, इसको लिखिए, नोट लिखिए, इस पे शॉर्ट नोट आता है. मैंने बाद में देखा कि मेरे पूरे कैटरैक्ट में कहीं है ही नहीं. पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपैसिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड आफ्टर कैटरैक्ट, इज ऑल्सो कॉल्ड आफ्टर कैटरैक्ट. दिस इज द opacification of the posterior capsule. This is the opacification, short में लिखना, posterior capsule को PC लिखो. This is the opacification of the posterior capsule that happens months to years, months तो है भी नहीं actually, years ही है, years after cataract surgery. After cataract surgery. Why does it happen? The epithelial cells in the pre-equatorial region of the capsular bag, the epithelial cells in the pre-equatorial region of the capsular bag, the epithelial cells in the pre-equatorial region of the capsular bag make an abortive attempt. Make an abortive attempt. Abortive मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि हाय हम फिर से लेंस बना दें, उनको लगता है लेंस कहाँ गया. Make an abortive attempt to reform the lens. ठीक है, reform the lens. Types of after cataract. इसको प्लीज तुम लोग कभी भी सेकेंडरी कैटरैक्ट मत बोलना. दिस इज आफ्टर कैटरैक्ट. सेकेंडरी कैटरैक्ट इज कैटरैक्ट हैपनिंग सेकेंडरी टू सिस्टमिक डिजीज. आफ्टर कैटरैक्ट इज कैटरैक्ट हैपनिंग आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी. टाइप्स लिखिए. सोमरिंग्स रिंग्स, SOMMSOMMERING, Somerings ring, RING ring, Somerings ring. ठीक है, 2 बार रिंग है, रिंग. Somerings ring, नाम सोमरिंग है, Somerings ring. सेकेंड लिखिए, Elschmig's pearls, ELSCH, ये भी नाम है किसी का. Elschmig, NIG, Elschmig's apostrophe S है ना, सोमरिंग्स में भी apostrophe S था. Elschmig's pearls, PEARLS, pearls. एंड थर्ड है आई थिंक टोटल मेम्ब्रेन या ऐसे कुछ है, देख लेना तुम. टोटल मेम्ब्रेन मैनेजमेंट, इसको आप ठीक कैसे करेंगे? आप तो आपने आईओएल डाला है और पीछे आप देख रहे हैं कैप्सूल ओपेक हो गई, पेशेंट को दिख नहीं रहा है. या सिम्टम्स भी या प्रेजेंटेशन लिख देते हैं. पेशेंट कम्स विद ब्लर्ड, कंप्लेंट ऑफ ब्लर्ड विजन years after cataract surgery, when initially after cataract surgery he had good vision. ठीक है, blurred vision many years after or years or months after cataract surgery. Management, YAG laser capsulotomy. YAG laser capsulotomy. So retinal detachment and displacement of IOL. लिटिल बिट अबाउट आफ्टर कैटरैक्ट. ये जो तरह तरह के नाम है ना, सोमरिंग्स रिंग, मतलब वो
जो सेल्स है वो दोबारा लेंस फाइबर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ बनाएंगे? तो उनको एक पीछे एक स्कैफोल्ड, व्हाट इज अ स्कैफोल्ड, एनीवन नोस? जब बिल्डिंग बनती है तो उसके सामने जो ऐसे ऐसे करके जो बैम्बू या जो फ्रेमवर्क लगाया जाता है ना बिल्डिंग बनाने के लिए, चढ़ने के लिए एंड ऑल दैट, दैट्स कॉल्ड अ स्कैफोल्ड. So scaffold is anything that gives support for a structure. ठीक है? So the posterior capsule acts. If you're not interested, just put your head down and go to sleep. Na? Posterior capsule acts as a scaffold on which these lens fibers grow. ठीक है? It acts as a scaffold on which these grow. Elschnick's pearls वो गोल गोल pearl type बन जाते हैं, क्योंकि अबॉर्टिव है ना, तो कोई बड़े अच्छे से लेंस फाइबर्स अच्छे ट्रांसपेरेंट टाइप के नहीं, अजीब सा एकदम डिस्टॉर्टेड सा कुछ बनता है. ठीक है? हम लोग को स्लिट लैम्प पे दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है. लेंस हमारा IOL आगे है, हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं? नाउ जस्ट सी व्हाट इज सो वंडरफुल अबाउट ऑफ्थैल्मोलॉजी. हम लोग वीडियो गेम भी खेलते हैं OPD में, जस्ट लाइक आप लोग जब बेचारे जो लोग PUBG खेलते थे जब था, so आप लोग कितना एक्यूरेट है. एंड माय सन यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड, मम्मा पता है हम लोग ना शैडो पे मारते हैं, क्योंकि तब तक वो आदमी आगे आता है, तो हम लोग पता नहीं क्या क्या वो लैग होता है, वो ये होता है, जैसे ओह भैया, मतलब एकदम ही वॉर जोन में ही पहुंचे हुए होते. हम तो इसमें मारते हैं, तो वैसे मैंने इतने मार दिए, मैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था, फलाना डिमांड. हम लोग भी अभी भी वीडियो गेम खेलते हैं. एंड 4 लाइट्स होती हैं रेड कलर की, ठीक है, और हम लेजर पे बिठाते हैं. हमने देख लिया स्लिट लैम्प पे हमें एनलार्ज्ड व्यू दिख रहा है. नाउ जस्ट इमेजिन IOL जो खुद है वो 1 मिलीमीटर उसकी थिकनेस है, और वो IOL इज रेस्टिंग ऑन द पोस्टीरियर कैप्सूल. देयर इज नॉट अ गैप बिटवीन द टू, इट इज रेस्टिंग ऑन इट. एंड द पोस्टीरियर कैप्सूल आई टोल्ड यू वाज 4 माइक्रॉन. हाँ, उस पर PCO बन गया तो वो थोड़ी मोटी हो गई होगी, मे बी 20 माइक्रॉन. ठीक है, इट इज रेस्टिंग ऑन इट. The lasers are so accurate that you can actually cut the posterior capsule without damaging the IOL. Though I have seen doctors who have made pits on the IOL, और मुझे कभी कभी इतना अजीब लगता है कि जब आप मार रहे थे और आपने एक पिट बना दिया, चलो आपने 2 पिट बना दिए, आपने 75 कैसे बना दिए? आपको दिख नहीं रहा था कि आप मार रहे हैं और पिट हो रहा है, भैया रुक जाइए. So anyway, so there are 4 red lights and you have to focus till the 4 lights converge into 1 light, and you have to be very sure कि आपने फोकस कॉर्निया पे नहीं कैप्सूल पे किया. तो आप उनको कन्वर्ज करके एक लाइट बना दीजिए, और उसके बाद आप बटन दबाइए और लेजर पूरा अच्छे से, पूरी कैप्सूल पूरी कट जाती है, पीछे गिर जाती है. आपने एक अच्छी सी ओपनिंग बना दी. So anyone who likes playing video games can always take Ophthal, because you can play video games all your life. So that is the end of the lecture. Someone please call in from outside. I really don't feel like giving you can watch this movie during the war. I don't know if it's ले लीजिए. आए ये नहीं चलेगा. Conjunctiva is being cut. The scissors are Westcott conjunctival scissors. Pupil is dilated. Cautery is being done to cauterize the blood vessels. Incision with crescent knife is being given. Sclera is being split in half. Cornea is being entered. Sclerocorneal tunnel is being made. It has been entered with a keratome. Viscoelastic is being injected and put on top of the cornea. This is a keratome, please remember. Rhexis is being done with Rhexis forceps. He has caught hold of the capsule and is tearing it in a circular fashion.
ये लास्ट 3 रोज का मत लीजिए संतोष जी, नहीं नहीं, लास्ट 3 रोज को नहीं देना है, बहुत ही बदतमीज है बच्चे। लड़कियों का ले लीजिए, वो 4 जो बैठी है, लड़कों का तो बिल्कुल ही मत लीजिए। उनको अटेंडेंस नहीं चाहिए, इसलिए वो मेरे बार बार बता करने पे भी नहीं, आप काटिए, बाकी उनका सबका ले लिया क्या आपने? नहीं, काट दीजिए उनका। It's a brown hard cataract, okay? This is not amber, this is brown color. This is all cortical matter which is being aspirated. Viscoelastic is being removed because you can't leave it in the eye. बहुत ज़्यादा IOP बढ़ जाएगा. You can still see some viscoelastic here.